Good morning, students. In previous lecture, we completed the fill in the blank, true, false, choose the correct options. Now we are going to start one sentence answer. Our one sentence answer in first question is, which a substance reacts with oxygen to produce heat energy is called combustion. A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen to produce heat energy is called combustion. Right? Chemical reaction है in which a substance react with oxygen to produce heat energy is called combustion. Now, second one, which form is energy produced during combustion? Which form is energy produced during combustion? During combustion, energy is produced either as a flame or as a heat. कंबशन के टाइम एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती है? ड्यूरिंग कंबशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आइदर एज अ फ्लेम या फ्लेम के रूप में और एज अ हीट के रूप में. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वो कह रहा है कि व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? व्हाट आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न in the presence of oxygen are called non-combustible substances. The substances which do not non-combustible substances, the substances which do not burn in the presence of oxygen are called non-combustible substances. Right? Now, fourth one, what are combustible substances? The substances which burn easily. The substances which burn easily in the presence of oxygen. The substances which burn easily in the presence of oxygen are called combustible substances. The substances which burn easily in the presence of oxygen are called combustible substances. What is ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire. Okay? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperatures. Okay? Now, give the definition of calorific value. Give the definition of calorific value. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called as a calorific value. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called as calorific value. Okay? Now, next one. Give 3 examples of inflammable substances. Petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, CNG are inflammable substances. Petrol, alcohol, liquefied petroleum gas मतलब LPG and the CNG are inflammable substances. Okay.
Now, next, answer the following questions in 3-4 sentence. Our first question is, explain how the use of CNG in automobiles has करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स को रन अप करने के लिए। देखो, CNG बर्न्स कम्प्लीटली, सबसे पहले जो CNG है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, राइट, एंड इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, मतलब उसके बाद, बर्निंग के बाद कुछ ऐसे रेसिड्यू वो लीव नहीं करता है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। एंड CNG इज क्लीन गैसियस फ्यूल, जो CNG है वो क्लीन गैसियस फ्यूल है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, any harmful gases, it does not leave any residue after burnings, CNG is a clean gaseous fuel, okay. Now second question is, explain how CO2 is able to control fires। CO2 कैसे कंट्रोल करता है? तो मैंने आपको बताया था, ये हैवी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और ये नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण ये एज अ ब्लैंकेट के रूप में वर्क करता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कट ऑफ कर देती है कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड द एयर, के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ कर देती है, राइट। इसीलिए ये क्या करता है, फायर को कंट्रोल करने में एबल है। CO2 गैस इज हैवियर देन ऑक्सीजन एंड कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक अ ब्लैंकेट। CO2 gas is heavier than oxygen and covers the combustible substances like a blanket. So carbon dioxide cut off the contact between the combustible substance and the air. Carbon dioxide cut off the contact between the combustible substance and the air. So this extinguishes the fire. Okay. Now third one. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver? Why? कौन सा जोन फ्लेम का यूज़ करते हैं जो राइट तो देखिए, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर दिस पार्ट इज़ वेरी लार्ज, जो मिडल पार्ट है वेरी बहुत लार्ज है, इज़ वेरी लार्ज। इन दिस पार्ट द पार्टिकल्स ऑफ वैक्स गॉट पार्शियल कम्बशन। इसमें क्या होता है, जो वैक्स होते हैं पार्टिकल्स के, इसमें पार्शियल कम्बशन होता है, फुली कम्बशन नहीं होता है, इसमें पार्शियल कम्बशन है। एंड गेव हायर टेम्परेचर, जिसके कारण ये टेम्परेचर हायर देते हैं। सो गोल्ड स्मिथ ब्लो द मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम, ब्लो करते हैं मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम को विद द मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, ब्लो करते हैं मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम के मिडल जोन की फ्लेम को ब्लो करते हैं किसके साथ, मेटेलिक ब्लो पाइप के साथ, फॉर अ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल इन दिस पार्ट विच मेल्ट्स गोल्ड एंड सिल्वर, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट बहुत लार्ज होता है, मिडल पार्ट ऑफ द फ्लेम लार्ज होता है, इसमें जो पार्शियल कंबशन है हायर टेम्परेचर दे रहा है, जिसके कारण जो मिडल जोन यूज़ करते हैं वो कौन, गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर किसको बोलते हैं, जब फायर लगती है फॉरेस्ट में। In the forest, there are trees and grass. During extreme heat of hot summer days, at some places, dry grasses catches fire. जो dry
ग्रास है वो क्या कर लेती हैं, फायर को कैच कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, राइट. इट इज़ बिकॉज द हीट इज़ सफिशेंट टू स्टेन इग्निशियन टेम्परेचर ऑफ अ ग्रास. क्योंकि उसने जो हीट है, जो ग्रास है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच गई है, जितना उसको चाहिए टेम्परेचर एक फायर लगने के लिए, उस टेम्परेचर पे वो आ गई है, जिसके कारण वो क्या होगा, वो आग पकड़ लेगी. जब समर में इतनी हॉट होता है, उसमें जितना टेम्परेचर एक इग्निशन टेम्परेचर एक ग्रास को चाहिए फायर करने के लिए, कैच फायर करने के लिए, वो उस टेम्परेचर में पहुंच जाती है, जिसके कारण वहाँ आग को पकड़ लेती है. फ्रॉम ग्रास इट्स स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर. जल्दी ही वो पूरे ट्रीज पर आग लग जाती है, पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है. इट इज़ कॉल्ड अ फॉरेस्ट फायर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर. उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो जल्दी ही उस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आग लग जाती है. मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन में समझाया भी था. इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है कि हर जो सब्सटेंस है अपने उनका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है. ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में जब वो पहुंच जाते हैं और वो फायर को कैच कर लेते हैं, क्लियर, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. राइट द टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशन आपको पता है 3 टाइप्स है कंबशन की. रैपिड कंबशन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, स्पॉन्टेनियस कंबशन ए मटीरियल सडनली ब्रस्ट, एक्सप्लोजन जिसमें साउंड भी प्रोड्यूस्ड होती है, हीट भी होती है और लाइट भी जनरेट होती है. रैपिड है, रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है एंड एक्सप्लोजन कंबशन है. क्लियर, बहुत इजी है. रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन. ओके, यहाँ पे हमने 1 सेंटेंस एंड 3-4 सेंटेंस को कवर अप कर लिया है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें.